Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. This is Mansi Thakkar, your English mentor, and today we are going to understand the fourth chapter from your season's textbook, जिसका नाम है Who Did Anil's Homework. Now, this is a story about Anil who does not like to do homework at all. And then suddenly somebody comes up to help him with his homework. So let us see Anil's story. Anil didn't like to do his homework. Too boring, he said. He played cricket, carom, and video games instead. He played till late in the evening. There was always something to do. His teachers told him, Anil, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like he did not know much. He could not answer questions in class or in the exams. But what could he do? He hated homework. ये स्टोरी अनिल की है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसे वो बहुत बोरिंग लगता था। वो पूरा दिन क्रिकेट, कैरम, वीडियो गेम्स खेलता रहता था, रात तक खेलता था। और उसके टीचर्स हमेशा उसे कहते थे कि अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। और ये बात अनिल को भी फील होती थी दैट यस, उसे कुछ नहीं आता, वो एग्जाम में भी आंसर नहीं कर पा रहा है, बट क्या करता, उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। One Diwali day, he saw his pet dog Jackie playing with a little doll. He grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little red shirt with old-fashioned buttons and a hat much like a witch's. The tiny man yelled, "Save me! Don't give me back to that dog. I'll grant you a wish. I promise you that." अब दिवाली के दिन अनिल ने अपने पेट डॉग जैकी को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखा। उसने वो डॉल उससे छीन ली और ही वॉज सरप्राइज दैट इट वॉज नॉट अ डॉल, लेकिन वो तो एक सबसे छोटी साइज का मैन था। उसने छोटा सा रेड शर्ट पहना था जिस पे ओल्ड फैशन वाले बटन्स लगे थे, और विच जैसी हैट पहनती है ना वैसी उसने हैट पहनी थी। और वो चिल्ला रहा था कि बचाओ मुझे, इस डॉग को मुझे वापस मत दो, मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूंगा। Anil couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the term, that is 35 days. The little man's face wrinkled like a piece of crushed cloth. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I to be punished this way? But I'll do it. अनिल को तो बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, मेरे जैसा लकी तो कोई है ही नहीं। उसने कहा कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क ये टर्म खत्म हो दैट इज 35 डेज तक कर दोगे तो मैं तुम्हें डॉग को वापस नहीं दूंगा। सो द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड, यानी कि ऐसा दिखाया जैसे कि वो खुश नहीं है। grimaced, scowled and pursed his lips, मतलब ऐसे ही एक्सप्रेशन बताए जैसे he is not liking to do it। और उसने पूछा कि मतलब तुम मुझे इधर से बचा के इधर फंसा दोगे, बट ठीक है, डॉग से अच्छा तो होमवर्क करना है। तो उसने बोला I will do it. True to his word, the little elf began to do Anil's homework, except there was one problem. The elf didn't always know what to do and needed help. Help me, he did say. And Anil would have to help in whatever way. Anil had to look up the dictionary for spelling. He had to help the elf with addition and subtraction. He had to do most of the division and multiplication problems as the elf did not know the tables. अब ये जो छोटा मैन था वो कौन था? एल्फ था। तो एल्फ ने जैसे कहा था वैसे ही वो अनिल की हेल्प करता रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एल्फ को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। वो हर बार अनिल से हेल्प मांगता था, स्पेलिंग देखने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हर एक चीज़ में अनिल उसकी हेल्प करता था। और तो और सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉब्लम्स भी अनिल ही करता था, क्योंकि एल्फ को तो टेबल्स आते नहीं थे। एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज अ नैग।
Anil was working harder. He was staying up nights, had never felt so tired, was going to school with his eyes puffed and red. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out through the back door. हर रोज हर एक वे में एल्फ वॉज ए नैग, मतलब ऐसा पर्सन जो हर चीज में कंप्लेन करता हो। अनिल अब हार्डवर्क करने लगा था, रात रात भर जागता था, थक जाता था, लेकिन सारा होमवर्क खुद करता था। फाइनली जब स्कूल का लास्ट डे आया तो एल्फ वॉज फ्री और कुछ होमवर्क नहीं था, तो एल्फ भी क्वाइटली बिना कोई आवाज किए वहां से भाग गया। Anil got very good marks. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. His parents wondered what had happened to Anil. He was now the model kid. He cleaned his room, did his chorus, was always cheerful and polite. It looked like he had changed and become a better child. और अनिल को बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसके टीचर्स, क्लासमेट्स, दे वर शॉक्ड एंड अमेज्ड। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि व्हाट हैपन टू हिम, वो एक मॉडल चाइल्ड बन गया, मतलब सब उसके जैसा बनना चाहते थे। वो अपना रूम क्लीन करता था, डिड हिज कोरस, कोरस मीन्स अपने जो डे टू डे वर्क होते हैं डेली के, वो अच्छे से करता था, एकदम बदल गया था वो। अनिल स्टिल थॉट he did made the little elf do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Anil had done it himself. अनिल को ऐसा लगता था कि उसने सारा वर्क एल्फ से करवाया, लेकिन एक सीक्रेट है दैट आई वांट टू टेल यू कि वो एल्फ नहीं था, अनिल खुद था जिसने सारा होमवर्क किया था। कैसे? क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, वो तो हर एक चीज में अनिल की हेल्प लेता था, और ऐसे करते करते अनिल सारा अपना होमवर्क खुद ही करता गया। सो दिस वॉज इट फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपका होमलर्न, ये जो ग्लोसरी यहाँ पे दिख रही है वो आपको अपनी रफ बुक में 1 टाइम लिखनी है। इसकी एक्सरसाइज हम लाइव लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द लाइव लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।